हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स एंड इफ यू कैन रिमेंबर इन चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आई डिस्कस विद यू some basic concepts, some basic terms of thermodynamics, and in those basic terms and basic I must say terms of thermodynamics, basic concepts of thermodynamics, we talked about that we need a system in thermodynamics where we have to observe the changes in properties, and it means that every system is to be explained by certain properties, and when every system is to be explained by certain properties, so out of many properties like I told temperature, pressure, volume, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। इसी में एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, शॉर्ट रिवीजन होगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी। एवरी सिस्टम हैज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेट अस कंसीडर दिस इज ए पेन इन माय हैंड। This can be, I think it is visible to all. ये अपने आप में जो मैं पेन लेके चला हूं, हम इसको एक सिस्टम मान सकते हैं। This system is made up of large number of constituent particles. तो हम and this system also has its own energy. इस सिस्टम का अपना एक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में whatsoever constituent particles are there, all these constituent particles have definite amount of different types of energies. Remember, each and I repeat, each and every constituent particle of this pen, of this system, thermodynamics terms में इसको सिस्टम मानेंगे। इस पेन के हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अपनी कुछ एनर्जी है जिसको आप बुलाएंगे, इट कैन बी ए काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी यू कैन से दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एटम रोटेट कर रहा है, इनमें रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो means there are some potential energy, and because of some movement these are called kinetic energy. But remember, some of all the different forms of energies possessed by the constituent particle, ये constituent particle जितना different types की energies को सेव करता है, स्टोर करता है, उसको हम internal energy बुलाते हैं। जो I repeat, the sum of all the different forms of potential energy and kinetic energy possessed by each and every individual particle of this system, इस पेन के हर पार्टिकल की जो भी एनर्जी है उन सबको ऐड करिए, that is called internal energy of this system। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मानी जाएगी। And I explained it earlier also, we cannot calculate this internal energy. Why? Because this internal energy, if you notice, it is sum of, you can say potential energy. It is sum of kinetic energy. What kinetic energy? This kinetic energy involves rotational energy, translational energy, electronic energy. We can't get them. हम इनको calculate नहीं कर सकते। तो हमें किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी नहीं मिलता, बट वी आर एबल टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। आई एम जस्ट सिंपली रिपीटिंग, ये मैंने आपको पहले भी आपसे डिस्कस करके बताया था। एंड रिमेंबर, दिस इंटरनल एनर्जी गेट ए सिंबल ऑफ यू। दिस इज सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या बोला? इस पेन का इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ इस पेन की अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं, सपोज एक हाइट से इसको नीचे लेकर के आते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों माना जाएगा? तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज इसलिए माना जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। रिमेंबर दिस पेन, इट वाज एट ए सर्टेन हाइट, let it lowers down to another height, so there is a change in its potential energy। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया तो इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने पर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा।
remember? So we can find the change in internal energy of the system, and as usual this internal energy change is also be called as state function. Means internal energy में अगर कोई change आता है वो independent of spark होता है. Remember, change आया, that's all. तो हम क्या बोलते हैं? We can find the internal energy change. And how do we find this internal energy change? I repeat it once again. Actually कभी भी आपने चेंज देखना है, कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज देखना है, तो प्रॉपर्टी में चेंज माना जाता है means property of that system in final state minus property of that system in initial state. Like suppose if we want to find the change in internal energy, so एक जनरल एक्सप्रेशन क्या बैठेगा? आप बोलेंगे कि सर इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट. दिस इज हाउ डू वी गेट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम. अब आप कहेंगे कि सर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे ला सकते हैं आप? How can you bring a change in the internal energy of the system? What is the way to get this change in internal energy of the system? System की internal energy में change कैसे लाते हैं? So remember, अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है, आप चाहते हैं ये पेन एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो कुछ भी कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज दो तरीके से ला सकते हैं. फर्स्ट, either by heat or by work. Means change in internal energy of a system, change in internal energy of a system can be brought. How it can be brought? In a system can be brought. कैसे? दो तरीके हैं. First by work, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड by heat, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे. कहीं भी किसी भी तरीके से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहते हो, या तो वहां वर्क कुछ होगा या फिर हीट होगा. और दो तरीके हैं फिर से. अगर सोचो, just think yourself, if आपके पास आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना चाहते हो, You do some work on the system. आप किसी सिस्टम पर वर्क करते हो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. आपने एक स्पून लिया, उस स्पून का अपना आप एक ऐसे मान के चलिए, बहुत इजी लैंग्वेज में, इंटरनल एनर्जी मींस वो सिस्टम में कितना वार्मथ है, कितना टेम्परेचर है. यू हैव टेकन ए स्पून, आपने उस स्पून को गैस पे रखा, एंड व्हेन यू कीप इट ऑन द गैस इट बिकम्स समवट हॉट. हीट देने पर उसका अब हॉट होने का क्या मतलब है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड. आपने उसी सिस्टम को, उसी स्पून को उठा करके रेफ्रिजरेटर में रखा, it cools down, means internal energy of the system is decreased. तो यहाँ आपके पास I need to say, वो जो आप फील कैसे करेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी है, because of some temperature exhibited by that object. Remember, तो मैं वही आपसे बता रहा हूं कि अगर आपके पास, खुद सोचो, आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो, वो सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और अगर आप सिस्टम से वर्क कराते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा. और इसलिए मींस वर्क दोनों तरीके से हो सकता है. तो इसलिए हमने क्या बोला? एक हमने बोला कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से मानी जाती है, वर्क से और हीट से. एंड if remember, if work is done on the system or heat is given to the system, heat is, I am writing, heat is given to the system. आपके सिस्टम ने वर्क किया और हीट इज गिवन टू द सिस्टम. सिस्टम ने वर्क किया, सॉरी आई रिपीट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पे वर्क हुआ या सिस्टम को हीट दिया गया. वी टेक इट एज पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव मानते हैं. वी टेक इट एज पॉजिटिव. व्हाई इट इज पॉजिटिव? मींस हम बोलेंगे वर्क डन प्लस W,
heat supplied plus Q. Why? Because it increases internal energy. Because it increases internal energy of the system. ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है. और इसके जस्ट अपोजिट, इफ वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग, if work is done by the system or heat is given out of the system, आपके पास सिस्टम से हीट बाहर निकला है या सिस्टम ने वर्क किया है, we take it as, हम इसको कैसे लेते हैं, we take it as negative, हम इसको नेगेटिव मान करके चलेंगे. means W भी नेगेटिव होगा, what you will say minus W, what you will say minus heat. हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. Why? Because big reason is internal energy decreases. It's really very important 2 points. क्या आप W को मींस, मैंने देखो बहुत आसान है, हर सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी है. आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हो. कैसे चेंज ला सकते हो? 2 तरीके से ला सकते हो, आइदर बाय वर्क और बाय हीट. आप उसको 2 तरीके से ला सकते हो, आइदर बाय वर्क और बाय हीट. और अगर वर्क सिस्टम पे किया, हीट सिस्टम को दिया, पॉजिटिव, क्योंकि उससे इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा. और वर्क सिस्टम ने किया, हीट सिस्टम ने छोड़ा, वी टेक इट एज नेगेटिव बिकॉज इट डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसको ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं. एवरीबॉडी शुड रिमेंबर, एवरीवन शुड रिमेंबर. Now what next? मैं इसके बेस पे कुछ और डिस्कस कर रहा हूं आपसे. लिसन. So internal energy of the system when I am talking, मैंने आपसे बोला आप 2 तरीके से इंक्रीज या आप 2 तरीके से चेंज ला सकते हो, आइदर बाय हीट और बाय वर्क. लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. इसी बेस पर आपके पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Now what is this first law of thermodynamics? What does it say? ये कहता है total energy of an isolated system or total energy of this universe is conserved. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. Remember, I repeat, the total energy of this universe, यूनिवर्स को अपने आप एक आइसोलेटेड सिस्टम मान करके चले हैं. और जब यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम माना है, तो हम क्या कहते हैं यहां पर, व्हाट डू वी से, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यार अगर मैं बोल रहा हूं यूनिवर्स एक सिस्टम है, तो इसकी जितनी एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी से इक्विवेलेंट मान सकते हैं. इट्स बट नेचुरल. तो हम अगर इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएं, तो हम उसमें वर्क या हीट से ला सकते हैं. तो हमने माना, इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं कि लेट the internal energy of a system, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन बता रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट. लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज U1. आपने माना कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपने क्या किया, लेट Q हीट इज सप्लाइड. आपने इसको Q हीट सप्लाई किया. Let Q heat is supplied and what do we find? Its internal energy. इसकी internal energy क्या बन जाती है? Its internal energy becomes simple U1 plus Q. आपके पास कोई सिस्टम है, आप एक सिस्टम, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, ये शो करने जा रहा हूं एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, वो U2 कैसे पहुंची? आपने पहले उसको हीट दिया, अब बढ़नी शुरू हो गई. अब आपने क्या किया, लेट W वर्क इज डन. आपने इस पे W वर्क किया, W वर्क इज डन.
अब वर्क इज डन और वर्क डन बाय द सिस्टम, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि Q प्लस और W प्लस व्हेन गिवन टू द सिस्टम, Q minus W minus when done by the system, remember. So let W work is done and internal energy becomes U2. इसकी इंटरनल एनर्जी U2 बन जाती है। इसका मतलब जो ये फाइनल हो गया, दिस इज फाइनल। ये फाइनल कैसे आया, U2 कैसे आया, पहली एनर्जी थी U1, आपने उसको क्या सप्लाई किया, Q हीट, फिर आपने उसमें क्या किया, W वर्क, बस आपने देखा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W एंड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब आप मुझे बताइए क्या आपको इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी चेंज को रिलेट करना आसान हुआ, नहीं हुआ? मैंने भी आपको यही बोला था कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W, Q स्टैंड्स फॉर हीट एंड W स्टैंड्स फॉर वर्क। So this is first law of thermodynamics what I am telling you। अब मैं इसी को आगे कंटिन्यूएशन में बताता हूं आपको कि how you will further study it। Now in continuation this I am just going to derive a very important another, you can say, concept or an you can say a relation। I will say क्या रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, इससे कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर वी हैव ए सिस्टम जिसका अपना एक इंटरनल एनर्जी है और हमने उस इंटरनल एनर्जी को हीट सप्लाई किया और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। let in a system Q heat is supplied, what is supplied, Q heat is supplied, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, एंड W वर्क इज डन, आपने Q हीट सप्लाई किया एंड W वर्क इज डन, सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q हीट क्योंकि सप्लाई किया प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखना ये जो बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा, तो आपको वर्क को लेना पड़ेगा माइनस W, राइट? तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहां जो आपसे एक सिस्टम लिया, ये सिस्टम अपने आप में लेट अस कंसीडर एक गैसियस सिस्टम, और जब आप एक गैसियस सिस्टम में मान करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज वी हैव अ गैसियस सिस्टम जिसपे पिस्टन लगा है, कुछ भी सिस्टम ले सकते हैं, ये गैसियस सिस्टम है, एक कंटेनर में गैस फिलअप है, उस पे पिस्टन लगा है, पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है जिस वजह से वो पिस्टन रुका हुआ है। अब मैंने क्या बोला, इस सिस्टम ने वर्क किया, लेट इस सिस्टम का वॉल्यूम V1 है, इस सिस्टम ने वर्क किया। अब मुझे बताओ अगर सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने गैस सिस्टम है, दिस इज ए गैसियस सिस्टम, और मैंने क्या बोला, इस सिस्टम ने वर्क किया, तो वर्क करने से क्या होगा, पिस्टन विल मूव अप और विल मूव डाउन, यस पिस्टन विल मूव अप, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि गैस इसको प्रेशराइज करके ऊपर फेंक रहा है, वॉल्यूम बढ़ा V, तो वर्क सिस्टम ने किया। आप सपोज के इसको क्यों हीट दे रहे थे, वर्क सिस्टम ने क्या इससे ऊपर फेंका पिस्टन को, तो इस कंडीशन में जो वर्क देखा जाता है, वर्क डन बाय सिस्टम, इस कंडीशन में वर्क डन बाय सिस्टम देखा जाता है W इज इक्वल टू माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। आपने किसे माइनस क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? श्योर? खैर, तो आपके पास आप दूसरी बात, वर्क को माइनस से आपने लेकर के चलना है। I just mean to say, I just want to make it very clear कि यहाँ आप इसको ये रखिए, वर्क इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, that's better। इसको उठा करके यहाँ लगा, क्योंकि वो माइनस माइनस डबल नेगेटिव है, तो मैं जानबूझ के इसको लिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको नेगेटिव ले चुके हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट? क्या निकला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा V।
इस तरीके से इसका वर्क कैलकुलेट होता है. दिस इज हाउ डू वी गेट इट्स वर्क. हम इसका वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ अनदर, आई मस्ट से कि ये एक दूसरी तरीके से आपके पास एक एक्सप्लेनेशन है. अब लेट अस कंसीडर, एक चीज बताता हूं मैं आपको. सो आई टोल्ड कि वर्क को आप प्रेशर एक्सेलरेट टू डेल्टा टी मान सकते हैं. कहीं भी वर्क कैलकुलेट करना है, प्रेशर एक्सेलरेट डेल्टा टी आप मान करके चल सकते हैं. हमने इसका अपना एक डेरिवेशन है, वी विल डिस्कस लेटर. फिलहाल मैं एक और डेरिवेशन पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, लेट अस कंसीडर, कहीं कोई भी प्रोसेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट अस कंसीडर, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, लेट अस कंसीडर if a reaction or a system change is observed at constant volume. Isochronic process की बात करता हूं. I just talk about, let us consider a system change is observed at constant volume. ये एक्सप्रेशन दे रहा है, वो क्या आया था ना इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, जो डेल्टा, जो W को रख करके आया था. अब मैं इसके आगे लेके चलता हूं. Let us consider a system change is observed at constant volume, so डेल्टा भी अपने आप में जीरो माना जाएगा. अब अगर डेल्टा भी जीरो माना जाएगा तो जो P external into delta V it also becomes zero, so delta U becomes is equals to Q, right? Q कैसे? At constant volume. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं मानते तो डेल्टा यू निकालने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ता. लेकिन अगर आपने प्रोसेस मान ली कि मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया, सारा एक्सप्रेशन साफ हुआ और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू QV निकल के आ गया. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज का एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि इंटरनल एनर्जी चेंज, ध्यान से सुनना, internal energy change is defined as heat supplied or heat given by a system at constant volume. Means whenever we observe a heat change in a system at constant volume, that brings or that tells about the internal energy change of the system. I repeat, internal energy change of the system is called as, is known as, is considered as heat evolved or absorbed. I repeat, it is called as heat evolved or absorbed when a process is carried out at constant volume, when a reaction is carried out at constant volume. Thank you for today. इसको बार-बार देखें. This is very important.